Okay. So, hi sir. You can see this device. Yes. This Yes. device is called Yes. Iris Pro. Okay. And for Iris Pro, you need to have a projector. You can see we have connected this projector and laptop or PC. Uh, you can see this. We have connected that PC, like Yes. laptop, right? Yes. Yes. So this Iris Pro can convert any flat surface, any projected flat surface into an interactive touch-based surface, right? So as you can see, like our laptop screen is visible here, and I can open any application if I want. If I want to open this Google Chrome from the projection area itself, I will be able to open it, right? It will come with the Neurat Teach software. With the help of Neurat Teach, you can conduct your offline classes as well as online classes, right? So for online classes, you need to sign up with the Neura Cloud platform. I will show you that one also. Once you log in on Neura platform, you will be able to handle as an admin. You will be able to handle for your staff, for your student. Also, you can interact with the parents. So you will be able to interact with the 4 component with the help of only one platform, right? So here you can see, like right now I have not logged it on my cloud platform, but still I am able to open this whiteboard and I can annotate on top of it. If I want to write something on the whiteboard, I will be able to do. You can see the writing experience. How fast you want to write, you can write and you will reflect immediately. Right, so we have 2 pens. You can use 2 pens separately. Like if you want want to change the color, you can do. The next feature it has like text recognition. So you can if you are writing something from your freehand writing, it will convert into a computer generated form. Right? So it will convert your freehand writing into computer generated. You can expand, like increase or decrease the size of the text based on the one part of your whiteboard. The next feature is it has the math recognition. So if you write any formula or any I can log in on the, I can immediately log in on the Neura cloud platform where I can connect with my student immediately, and I will take you through the offline and online classes simultaneously. Right? So you can see all the classes I have created here. I can click on this any particular class and I can create my new lesson plan here. And then as a demo and confirm. You can see again one virtual whiteboard is open, right? So this whiteboard is sitting over the cloud, and whatever you will write on this login whiteboard will automatically stay on the cloud, and your students who is sitting in home, they will be able to connect with the teacher and for the classes, right? So here you can see the 2 more options will come: go live option and publish option. So here also, if you want to do any text recognition, math recognition thing, you can do. The same feature you will be able to operate from offline as well as online. So you can see I have written this formula, some numerical things. It will recognize and give me the answer. So now you can increase the size of this text. Also, you can decrease the size of the text. Now, if you want to annotate on top of it, you can annotate and explain about the part.
Next thing we have like geometrical tools. In the classroom, if you want to use any geometrical tools, ruler, compass, and protractor, you can immediately do. And for the drawing of any angle, with the help of only ruler, you will be able to draw any angle. You can see in my ruler there is a degree reader, and also you can change centimeter, millimeter, and inches. So right now I want to draw the 50-degree angle. I can just immediately open my ruler and draw it. Right now, if you want to bisect the angle, you can take this compass and immediately bisect it. It's like you will be able to bisect your angle and use simple straight line. Hi guys. Now you can take this protector for measuring. Previously it was 50 and now it is 25. Correct. So it will also show you the angle. Next thing is it's like you can use predefined shapes. Also, it has a smart draw. If you're drawing any free handwriting shape, it will recognize and convert into an actual form. Right, sir? So, with the help of this, you can teach your classes very interactive way. Now, coming from this go live option. So, for live classes, what you can do? Click on this go live option. It will show you two options, like virtual tutorial and audio tutorial. So, right now I can connect. I can start my classes only with the virtual. Right. So, it will show you teacher's face as well as student's face. Right. So also teacher has a full command to open this or allow this student to show their video or not. Right. So right now my laptop camera is accessing my video. If you want to install one separate webcam, you can do it. Right. If I start my video sharing here, now I can log in as a student from my laptop. I'm sharing my laptop screen with you. Right. So here I can log in as a student and I can go on the same class. Let me connect on the same class again. So you need to connect with the same class with your student also, right? So I can go in my cloud option as an admin. So what you need to do for accessing your admin platform, you have to just sign up on neuro.com. Okay, you can go on this neuro.com platform, just sign up, enter your email address. On that email address, you will receive one mail as admin invitation. On that invitation, you have to set your password. Once you set your password, you will immediately log in on the cloud platform. So you will be able to see this platform as a My Institute. So here you can create your classes. I can go on this particular class and add a student also. Right now, I have logged in as a teacher in this platform, right? So here you can see like staff as a Preeti as a teacher in this staff in this class, right, sir? So here what you can do, you can create your students. You can add your students here. Create student. Upload your students' data in a bulk format. Download one sample file. On that sample file, it has a format. On that format, you have to enter your student data and browse it, right? So once you browse, the data will be available here. Right now, we have created this much data. And for the staff also, you can just click on this create staff.
create staff and bulk upload. Same procedure for the teachers data also. Now in admin management, right, if you want to make 1 or 2 or 5 admin, for example, you have a principal, vice principal, director, and other members also. So also they want to see the what is going on in this particular platform, what are the performance in this classrooms. You can just create admin. Otherwise, if you want to make your staff as an admin, you can just go on the staff management, click on this particular teacher name and upgrade to as an admin. So the teacher will be able to access other institute platform. Course management, here you can create your own data. Otherwise, like we will provide you the CBSE Learn to Code as common core access data by default. Okay, so here you can create your own data. You can just enter your curriculum name and then confirm. So the data will be acceptable in the form of images, videos, web links, and PDF files and the document. In device management, what you can do, you can register this device with the new, here in the platform in your account. Then whatever you will write on this device, it will automatically save on the cloud here only, right? This is a broadcast message. Here you can, if you want to share any notice, any information with the teachers as well as the student, you can just type your title and what is your message, you can just type and send. So this message will be available to teachers and students in the form of notification, right? So right now I have added my student in this class. So my student will go on this particular class, that is Anil classes, right? So here you can see this demo class. So once I start this go live option here as a teacher, okay, my student will be able to see this particular class is going live. You can see this live option is blinking. So a student can think like this class is going on, my teacher is teaching live. So they can just click on this particular class and they will be able to join with a live session in a live class, right? So here I can start my video. Also, a student can connect via audio or via video, right? So here you can see this teacher's video is visible. Now, if a student will start their camera, now you can see this student's video is also visible. Here teacher can also see which student has joined and what like video is also available. Now you can click on this student. So student's name will be visible there. Okay. The next thing is chat option. But if a student wants to chat with the teacher, they can chat. So here I can write as a hi. So you can see this student has sent a message to the teacher. Also teacher can reply from their platform also, right? Okay, so I can just stop my live classes. Next thing is like if you want to share this file with the student, so you can you can just publish it, right? So once you publish, this file is available with a student for the future reference. So after a week or after 10 days, if a student wants to revise that lesson, they can just come here, log in, and then start learning, right? So here you can see whatever I will write on my whiteboard, it will automatically reflect to the students' platform also, right? So this way you can conduct your live classes and simultaneously you can coordinate with the student. The next thing, what you can do, I can explain from my laptop only, right? So here you can, if after the class, if a student has any doubt, any question, if they want to discuss with the teacher, what student can do, go in the students option,
Here you can see like share and something with your class. So if you have any question, if a student has any question, they can just type and post it. So this question will be visible to the like teacher also. So teacher can go here on that class only. Yeah. So here is my class. So teacher can go and the students. Teacher can see like this student has commented one question or anything if they have written. So teacher can immediately reply from the here itself, right? So they don't need to depend some other tool or other platform where they can go and communicate. So this question answer will be visible to the all the students. So some other student has the same doubt, they can immediately get the answer from here only, right? Okay, so I can just stop sharing and then I'll share once again the screen. Kriti, and the recording part, sharing part, other simulation part are covered? Doing. So the next feature, it has an eyesight option, right? If you want to record your session, in a live class also if you want to record, it has a like, screen recorder, you can record the screen. Also, but if you want to record your teacher's face, you can do with the live class also. But for example, like if you don't want to record your session on a live, what you can do, you can click on this eyesight option. You can increase or decrease the size of your video. Paste on one corner of the whiteboard. Okay, so it will capture your video and just start this recording option. Give the recording name and then save. So now your recording is started. So it will capture your voice also as well as your video. So whatever you will write here, it will record it. Right. So likewise, you can add n number of pages and you can start recording. Now I have recorded this 26 or 27 seconds video. I can just play it. You can hear my voice. This voice is recorded by my laptop speaker, right? But if you want to record with some other speaker or if you have some other tools for the recording, you can connect with the laptop and then you start recording, right? Now I can go to the I can go again in the whiteboard. Just pause it. The next feature has like a PHET content. So if you want to show some live simulations with the student for the more understanding, you can use this simulation. It has a math simulation also, biology, chemistry, earth science, and physics simulation is also there. So you can choose any of the simulation if you want. Right. So for example, I want this graphic and slope interception. Right. So I can just click on it. It will show me the live simulation, like with what kind of simulation I want. So you can see this is for maths. Right. So there is a formula y equal to mx plus b. You can just start your simulation. You can see this line is moving. If you will change the number here, line is moving, and also you can see the coordinates. You can see this minus 6, minus 10, and also you can do this one coordinate also. Otherwise, this is showing slope. Y equal to x formula if you want, you can use that one also. Minus x, what is it? Right. So likewise, you can do the live simulations with the student. So they will be able to understand the numerical things or formulas in a very appropriate manner. The next feature it has, like if you want to search something, so you don't need to go on your Windows option and search for the Google things.
you can immediately open your browser on the whiteboard itself. Next is like if you want to share, if you want to highlight any part or something on your whiteboard immediately, you can use this spotlight feature. Also, you can increase or decrease the size of it, right? And transparency also you can increase or decrease it. There is a curtain feature. Like if you want to ask any question or any answer with the student, you can just drag this, and you can show like this is the question. You have to tell the answer. After that, like you can reveal the answer after discussing with the student, right? Next is stopwatch. If you have some question, if you have given some question to the student and you are asking to solve this question within a 10 seconds, so you will not be able to count 10 seconds in your watch, right? You can just start this stopwatch. This is also visible to the student, so they will be able to calculate the answer within a 10 seconds. Also, you can see which student has given within a 10 seconds answer, right? Or you can use this calculator like inbuilt calculator if you want. Then this is the grouping option, right? This is a very fantastic tool. So in a live class, right? In a live class or in a physical class also you can do. So what? How many students you have added in this particular class? Accordingly, you can create a group, right? So in a physical class, we are creating a group, like we have created five members group. 2 groups we have created if you have a 10 students, or 3 groups we have created. Randomly, you can also create the group in this random. There is no student in this particular class, I think, right? So also you can create this random group or a group maker. Like if you want to create 2 or 3 students you have like added in your particular class. Mr. Pramod is asking something, but your voice is not audible, Mr. Pramod. Hello, Sarji. Mr. Pramod is speaking, but his voice is not audible. Probably his mic is on, but you continue. Yeah. So this group option you can also use for making the group and assigning the assignment on a group wise, right? Also, you can change the background of your whiteboard. You can use this green board. You can use this black board. If you want to use this grid option, you can use. Right? मुरुगन सर. Yeah, बोलिए. आपको वो जो फिजिक्स केमिस्ट्री का जो था ना, अभी मैडम ने दिखाया, एक बार फिर 1-2 मिनट में रिपीट करने के लिए बोलो प्लीज. अच्छा ठीक है, उसमें और एक सिमुलेशन कर सकते हैं, मतलब उसमें कई सारा सिमुलेशन है. प्रीति, you can show some other simulation also. Explaining. So this is a live simulation, right? So that I was showing about this math simulation, right? For example, if you want to use this bio simulation, or I can use this chemistry simulation. So this simulation I can use this molecule polarity. I can use this, right? So with the 2 atoms, with the 3 atoms and real molecules. So whatever you want to show to your students, you can use, right? 3 atoms you can use. So atom A is a electronegative, atom B is a electronegativity, and electronegativity all are there, right? So you can change the negativity of your atom, right? So you can see this arrow is moving. Right? If you want to change this atom A's energy, if you are changing, you can say this atom B is moving. Which direction it is moving? Then you are changing the atom's negativity. That side will move. Right? See, likewise, there are so many simulation for the subject related physics, chemistry, even I think the geography also is there. There are different type of simulation. According to your convenience, you can select it.
right? So there are so many simulations available in this So if simulation you category. want to use this bond dipoles or partial charges, you can see this black arrow is also available and the charges is mentioned. So there is a plus charge, there is a minus charge. So you can annotate accordingly, right? If you are increasing the negativity charge and if you are lessening this negativity charge, you can see this is moving again and again. Like means you can do the live simulation. And if you want to use this electric field, you can say there is a minus charge or there is a plus charge. So now if you are annotating now, it will again show you. So this kind of simulations you can use in a live class for explaining the charges about it. Right? We are also, as I showed you in like my institute page, there is one option called my this course management, right? So whatever content you will prepare there, it will be visible here in a SAR option. So this is a knowledge search and ranking. So by default, you will be able to see the CBSE learning code and common code. So I have created this much curriculum in my account. So if you will create your data and upload that, it will be visible to your all these teachers to access the data and they can explain on the whiteboard in your class. So the data is available in the form of images, readings. There is a link. You can just click, it will open your window there. Right. Also, you can use this videos. Just drag and drop. So this is you can say like this is your topic. Just put here. Again, you can search for any topic if you want. Right. Now you can start explaining about the part. If you want to take any screenshot in your running video or any video if you are running, I want to take any screenshot of a particular thing, you can just take it. Right. Also, if you want to annotate on top of your image, you will be able to do it. So this is your like periodic table. So if you want to annotate, what is it? So this is for VK, right? This is for BI, right? Likewise, you can annotate on top of your image, and whatever you have annotated on this image, now you can save it as well. Okay. Next feature is has like My Cloud. If you will write something on this My Cloud feature, it will give you the result in the form of image, videos, and text. Right. So the data is coming in My Cloud from the web. Right. So we are not curating the data for My Cloud. It is searching on educational sites and removing the advertisement and irrelevant data which is not based for the education purpose. So it will provide you the data only related to the education. Okay, you can copy the text. Also, you can use this video. Nervous system, if you want to explain about the brain, you can use this video also. Right, if you want to explain the part of the brain, you can take a pen. You can explain it. Right, sir? Likewise, you can annotate in your classroom. If you have any PDF file, any Word file, any document file saved in your laptop and want to explain about that, you can just click on this plus option and you will be able to operate, able to handle your laptop screen from the whiteboard only. Yes, right. So you don't need to go on your whiteboard option and then search it down. Where is my file? You can just go ahead and increase the size of your file, and you will be able to operate it. Right. So I have opened this file
I have saved this some text file from here. I have created this whiteboard as a PDF, right? So over that file only you can annotate and save. So how you can create your this whiteboard into a PDF file, right? So you can click on the share option. It will give you one QR code and one global access code. You can just एंड पार्टिसिपेंट जो भी है सर, आप लोग को आपके पास क्यूआर कोड स्कैनर है, आपके मोबाइल से स्कैन कर सकते हो, सो दैट आपके मोबाइल में पीडीएफ करके आ जाएगा. सो एनीवन कैन ट्राई इट फ्रॉम योर साइड आल्सो. आप ऑनलाइन में कर रहे हो, ऑनलाइन भी एक क्यूआर कोड स्कैन कर लीजिएगा, आपको ये लेसन प्लान आपको ऐसा पीडीएफ मिल जाएगा. नॉर्मल फोन का स्कैनर भी यूज कर सकते हैं, जो आप जैसे पेटीएम स्कैन करने में यूज करते हैं ना, सेम स्कैनर भी आप यूज कर सकते हैं. तो आप यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख सकते हो, मैंने जो भी व्हाइट बोर्ड में लिखा था सारा मेरा यहाँ पे एज अ पीडीएफ फाइल में अवेलेबल है मेरे फोन में, राइट. तो इस तरह से आप ये व्हाइट बोर्ड को पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट करके अपने पास में रख सकते हो और स्टूडेंट के साथ में शेयर कर सकते हो. Anyone is trying or I can just cross it? किसने ट्राई किया सर आपके मोबाइल पे, या नेक्स्ट पेज में जाओ. उदय जी, आप यू वांट टू ट्राई इट? यस यस, आपने ट्राई किया तो ट्राई कर सकते हो, ठीक है. So now this I have explained it all the features and functionalities with the live class or what you can do in a physical class. So if you have any question, any doubt, you can just ask. यांना परत थोडंसं हिंदी में, हेलो सर, हिंदी में एक्सप्लेन करने के लिए बोलो प्लीज, थोड़ी देर के लिए. नहीं ठीक है, मैं यही बोल रहा था कि आपने जो अभी जो दिखाया है, ये जो क्लासरूम आपके जो व्हाइट बोर्ड है, जो नॉर्मल प्रोजेक्टर और नॉर्मल व्हाइट बोर्ड को हमारा डिवाइस लेके जो इंटरेक्टिव बना दिया. इंटरेक्टिव में बहुत सारा फीचर्स दिखाई है प्रीति ने, डिफरेंट पेन यूज किया, ज्योमेट्री टूल दिखाया, एंड ट्रिकोनोमेट्री का टूल दिखाया, सिमुलेशन दिखाया, आपको सब क्रिएट करने के बाद शेयर भी किया, आप किसी को पीडीएफ फॉर्मेट में शेयर भी कर सकते हैं. प्लस हमारा इसके साथ साथ हमारा अभी रिकॉर्डिंग फीचर्स अपने देखे, इवन लैपटॉप को यूज करके भी रिकॉर्डिंग करके आप अपलोड कर सकते हो, किसी को शेयर कर सकते हो. इसके साथ साथ हमारा वर्चुअल क्लासरूम प्लेटफॉर्म भी दिया जा रहा है ये डिवाइस के साथ, 1 ईयर सब्सक्रिप्शन फॉर 60 स्टूडेंट एंड स्टार्टर प्लान मिल रहा है. उसके बाद आप कोई भी प्लान जा सकते हो. तो हमारा हार्डवेयर खरीदने से आपको बोर्ड के साथ कितने भी फीचर्स मिल रहा है, कंटेंट प्रिपेयर कर रहे हो, माई क्लाउड, इमेजेस, टेक्स्ट, वीडियो, सब कुछ आपके लेसन प्लान, आपके जो लेक्चर प्रिपेयर कर सकते हैं. सेम टाइम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी हम इसके साथ, हमारा प्लेटफॉर्म भी आप यूज कर सकते हैं. दिस इज व्हाट अवर एंटायर डेमो में दिखाया है. ये ब्रीफ कर दिया मैंने. उदय जी, आप आपकी तरफ से कुछ ऐड करना चाहते हो? सर, आपल्याला कुणाला काही प्रश्न विचारायचे असतील तर प्लीज विचारू शकता प्लीज. उदयजी, मला एक विचारायचं आहे. बोला सर. आता आमचे माननीय प्राचार्य डॉक्टर भरत शिंदे सर आता ऍड झालेले आहेत. ओके. थोडंसं जरा जे पहिलं जे डिव्हाइस आहे, आपण जे दाखवलं होतं, ते डिव्हाइस स्टार्टिंगला कशा पद्धतीने फिक्स केलं आणि काय काय गोष्टी ओके 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 5 मिनिटांमध्ये जर आपण सांगितलं तर आमच्या प्राचार्यांना पण ते सगळं व्यवस्थित अजून एकदा. मला मुरुगन सर, मला स्क्रीन दाखवतात प्लीज. या प्रीति डिवाइस का स्क्रीन दिखा दो. डिवाइस में हमारा आइरिस प्रो का माउंट किया वो दिखा दो. हिंदी में बोलो. How you are going to connect, what are the different parts and the components of that system, and how we are going to connect, and what are the main features of your system. Yes, please sir. show it. My Yes, honorable sir. principal Dr. Bharat Shinde has joined it. Please. Yes sir, yes sir, yes sir. Okay, Preeti, you just explain the connectivity part of it. हमारा जो Iris Pro and Whiteboard का, हम लैपटॉप का कनेक्टिविटी, फिर बाद में जो बोर्ड में फीचर्स जस्ट ब्रीफ में बता दो जस्ट अगेन. ओके, सो आप ये देख रहे हो ना सर, ये डिवाइस जो लगा हुआ है, ये यूनिवर्सल माउंटिंग, ये सब कुछ आपको डिवाइस के साथ में आएगा, अलग से कुछ भी नहीं लेना है. यूनिवर्सल माउंटिंग आएगा, केबल कनेक्शन, सारा चीज आएगा. ये स्टाइलस भी आपको आएगा. इसमें जस्ट आपको 3 मिनट चार्ज करना है और आप इसको 3 to 4 आवर यूज कर सकते हो. ये केबल्स भी सारा आप डिवाइस के साथ में आएगा, राइट. इसको आप प्रोजेक्टर के साथ में और लैपटॉप के साथ में आपको कनेक्ट करना है.
with the help of HDMI और USB, right? तो अगर आप इसको HDMI और USB से नहीं कनेक्ट करना चाहते हैं, देन वाईफाई के थ्रू भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जस्ट ये HDMI और USB मैंने रिमूव कर दिया है, राइट? अभी मैं इसको चेंज करूंगी और ये अभी एक QR कोड टाइप का स्कैनर आएगा। आप ओवर द वाईफाई अपना फोन, लैपटॉप, टैबलेट जो भी आपको कास्ट करना है वो आप कर सकते हो। अदरवाइज इसमें आप ये देखो, ये ऐसा आएगा स्टार्टिंग में जब आप लैपटॉप कनेक्ट नहीं करेंगे, राइट? फिर भी आप इसमें पढ़ा सकते हो। एक स्क्रिबल बोर्ड आएगा, इस स्क्रिबल बोर्ड में आप जो भी लिखना चाहते हैं आप वो लिख सकते हैं, राइट? सेम एक्सपीरियंस आपको जैसे स्कूल में मिलेगा, सेम वैसे ही यहाँ पे आएगा। बस डिफरेंस क्या है, यहाँ पे आपको सिर्फ एक पेज मिलेगा, मतलब सिर्फ यही एक पेज आएगा। ऐसा इमरजेंसी पर्पस, सपोज आपके लैपटॉप का बैटरी डिस्चार्ज हो गया, पावर केबल नहीं मिल रहा है और आपको इमीडिएटली गेस्ट लेक्चर के लिए आपके यहाँ पे कोई टीचर आ गया है और उनके पास लैपटॉप नहीं है, आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? तो इमीडिएटली आप ये एक स्क्रबल बोर्ड ओपन करके दे सकते हो। टीचिंग टूल्स के लिए पेन रहेगा, इरेजर, हाइलाइटर, एंड ये शेयरिंग ऑप्शन यहाँ भी है। तो अगर स्टूडेंट्स उस चीज को नोट नहीं कर पा रहे हैं इतना जल्दी से, तो जस्ट वो स्कैन करें, इमीडिएटली डाउनलोड हो जाएगा, राइट? इस तरह से आप इसको वाईफाई के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। वाईफाई के साथ कनेक्ट करने के लिए क्या है, यहाँ पे ये QR कोड आपको दिखाई देगा, एक कंपेनियन ऐप है। ये मैं अपने फोन को भी एक कास्ट करूंगी, तो ये एक कंपेनियन ऐप है हमारा। इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। जस्ट ओपन करना है एंड यहाँ पे देखो ये मेरा डिवाइस को स्कैन करेगा, राइट? तो यहाँ पे आप ये देख रहे हो नंबर 1 आ गया। ये सेम कोड जो वहाँ पे लिखा हुआ आप कोड चेंज भी कर सकते हैं, अपना नाम भी वहाँ एंटर कर सकते हैं। जस्ट यहाँ पे क्लिक करके और पेयर करना है। जैसे ही आप पेयर करके इसको कास्ट करोगे, आपके फोन का स्क्रीन वहाँ पे मिरर हो जाएगा। तो आप अपना टैबलेट है उसको भी कास्ट कर सकते हैं ना। अगर आपको कुछ शो करना है अपने फोन से, आप सारी चीजें शो कर सकते हैं। अगर आप ये चीज अपना फोन का स्क्रीन नहीं दिखाना चाहते हैं, आप जस्ट बंद कर दीजिए। अब फुल व्हाइट बोर्ड में आ गया, राइट? अब बड़ा बड़ा दिखेगा आपके स्टूडेंट्स को। अगर आप अपने फोन का स्क्रीन ऐसे सब पब्लिकली नहीं ओपन करना चाहते हैं, तो यहाँ पे एक ऑप्शन और है ये अपलोड करने का। आप इस अपलोड पे क्लिक करके भी डॉक्यूमेंट्स, इमेज, वीडियो जो भी अपलोड करना है वो आप इमीडिएटली अपलोड कर सकते हैं, राइट? ना अगर अभी आपको बेसिकली ये जो प्रीति, दिस इज वन ऑफ द फीचर हमारा जो डिवाइस में है कि आप मोबाइल से भी आपके कॉस्टिंग कर सकता है। दिस इज वन प्लस जो इसके पहले जो डेमो दिखाया था कि आपको लैपटॉप कनेक्ट करके भी इंटरैक्टिविटी आप जो टूल यूज कर सकता है। वापस आप स्क्रीन में जाइए ना, कैनवास में प्रीति। हाँ, यहाँ पे आप देख रहे हो मैंने लैपटॉप को केबल से सारा हटा दिया है, लेकिन फिर भी मैं अपना लैपटॉप जो है वाईफाई के थ्रू कनेक्ट कर सकती हूँ, राइट? तो इसमें भी लैपटॉप के लिए भी एक कंपेनियन ऐप है। आप वो कंपेनियन ऐप यहाँ पे ओपन कीजिए, राइट? कंपेनियन ऐप ओपन करेंगे, यहाँ पे आपको डिवाइस के लिए आ रहा है, ये डिवाइस यहाँ पे कनेक्टेड है। जस्ट ये कास्टिंग पे क्लिक करना है और आपका जो लैपटॉप है आपके बोर्ड पे दिखाई देने लगेगा। तो आप इमीडिएटली वाईफाई के थ्रू भी अपना लैपटॉप कास्ट कर सकते हैं। Now it will get connected. You can see my laptop screen is connected with my Iris Pro device over the Wi-Fi. अब आप इसको लैपटॉप को साइड में रख दीजिए एंड आपको भी जो भी इसमें ऑपरेट करना है एज अ टच मोड आप ऑपरेट कर सकते हैं। व्हाइट बोर्ड ओपन करना है, सेम आप व्हाइट बोर्ड भी यहाँ पे ओपन कर सकते हैं, राइट? करेक्ट। अभी
अभी आपको यहाँ जो भी करना है आप ओवर द वाईफाई सारी चीजें कर रहे हैं विदाउट द केबल कनेक्शन। उदय जी, ये जो कनेक्टिविटी पार्ट और डिवाइस का ब्रीफ बता दिए, ये जो व्हाइट बोर्ड कैनवास इसमें जो भी डेमो दिखाया है, सो आपके समझ गया या तो वापस कुछ एक हमारे निर्मल सर और ये जो प्रिंसिपल सर है न्यूली ज्वाइन हुए थे, शॉर्टली ब्रीफली 5 मिनट में हम कर सकते हैं तो अच्छा रहेगा। ओके, सो प्लेटफॉर्म बट इज सेपरेट, वो तो न्यूरा प्लेटफॉर्म हमारा तो ऑनलाइन तो हम दे ही रहे हैं, तो आपको तो हमने बता दिया। प्रीति, ये जो कैनवास में क्विकली जो फीचर्स है मेनू बार में से लेके साइड में जो सिमुलेशन और बैकग्राउंड कर्टन वो वाला वो और कंटेंट सार वाला इतना बता दीजिए फ्री में 5 to 10 मतलब 10 मिनट्स में। ओके जस्ट कनेक्ट हो रहा है। हाँ ठीक है। ओके तो बेसिकली जो यहाँ पे बोर्ड आपको दिख रहा है ना, इसमें आपको ये टूल्स तो ऑलरेडी मिल रहे हैं, इसके साथ में हमको लाइव क्लासरूम का फीचर मिल रहा है। लाइव क्लास में जाने के लिए ये गो लाइव का ऑप्शन है, इसमें सबसे पहले तो आपको रजिस्टर करना होगा अपने आप को, देन आप ये चीज को ऑपरेट कर पाएंगे और अपने स्टूडेंट्स को भी वहाँ पे रजिस्टर करना होगा, राइट। तो यहाँ पे भी लाइव क्लास के लिए आप यहीं से ऑपरेट कर सकते हैं। देन आप अपने लैपटॉप का कैमरा भी एक्सेस कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप लैपटॉप का कैमरा एक्सेस नहीं करना चाहते हैं, लैपटॉप का कैमरा एक्सेस नहीं करना चाहते हैं, तो एक वेबकैम लगा सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे अगर मेरा वीडियो ऑफ है, मैं यहाँ पे जस्ट ऑन किया और देखिए मेरा लैपटॉप का कैमरा मेरा इमेज एक्सेस कर रहा है ना। यहाँ पे और ऑप्शन है पोलिंग ऑप्शन। तो सपोज आपने कोई क्वेश्चन दिया अपने स्टूडेंट्स को और उनकी इसका आंसर क्या है या उनको आपने पूछा ये आपको लेसन समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो आप इमीडिएटली यहाँ पे ये पोल ले सकते हैं। तो यहाँ पे एक स्टूडेंट ने अभी लॉग इन किया हुआ है, तो मैं अपने स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। यस, तो यहाँ पे अभी एक स्टूडेंट ने लॉग इन किया हुआ है, तो आप यहाँ देख स्टूडेंट आंसर देते हैं उस चीज का, तो इमीडिएटली यहाँ पे वो रिफ्लेक्ट करेगा कि कौन से स्टूडेंट ने क्या रिस्पॉन्स दिया है, राइट। ऑल्सो यहाँ पे स्टूडेंट भी अपना वीडियो और ऑडियो के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट चैट ऑप्शन है, कुछ क्वेश्चन पूछना है चैट के थ्रू स्टूडेंट को टीचर से, सेम प्रोसीजर आप वो भी कर सकते हो यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे लाइव सिमुलेशंस का है, जैसे आप क्लास में लाइव पढ़ाना चाहते हैं अपने स्टूडेंट को, कोई लाइव एक्सपेरिमेंट दिखाना चाहते हैं, तो ये लाइव सिमुलेशंस कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कोई भी लाइव सिमुलेशन ले लेती हूँ, आर्ट का ले लिया या ऐसा और फिजिक्स पे जाके मैं कोई भी सिमुलेशन ले सकती हूँ। एटम इंटरेक्शंस का भी ले लेती हूँ फिजिक्स में, राइट। तो अभी मुझे ये फिजिक्स में एटम्स के इंटरेक्शन दिखाना है, नियॉन और ऑर्गन का दिखाना है, तो आप यहाँ देख सकते हैं ये दो चीजें जो है आपकी चेंज हो रही है, राइट। यहाँ पे स्लो मोशन में दिखाना है या नॉर्मल जो स्पीड होती है उस पे चेक करना है, तो ये आप यहाँ पे सारी चीजें चेक कर सकते हैं। ओके, अगर यहाँ पे आप ये चार्जेस इनके बढ़ाते जाएंगे तो ये आपको देखो आप मूव हो रहा है, ये नियॉन पोटेंशियल एनर्जी एंड डिस्टेंस बिटवीन एटम्स जो है वो सारा मूव हो रहा है। अगर आप ऑक्सीजन का चेक करना है, ऑक्सीजन का भी चेक कर सकते हो, यहाँ पे आर्क बन के आने लग गया। देन नियॉन आर्गन क्या है, मूव क्या कर रहा है, नियॉन टू नियॉन मूव कर रहा है, ऑर्गन टू ऑर्गन मूव कर रहा है, राइट। एंड नियॉन टू ऑर्गन अगर देखना है तो नियॉन टू ऑर्गन भी मूव कर रहा है। आप यहाँ पे एटम्स का कलर भी आप चेंज होता हुआ देख पा रहे हो, राइट। तो ये लाइव सिमुलेशंस भी आप दिखा सकते हैं अपनी क्लास में। नेक्स्ट आईसाइट ऑप्शन में आपको अगर वीडियो रिकॉर्ड करना है, वीडियो अगर आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं आईसाइट में, यहाँ पे आप इमीडिएटली अपना आईसाइट ऑप्शन ऑन करेंगे। लैपटॉप अभी मेरा साइड में है इसलिए मेरा साइड व्यू ले रहा है, अदरवाइज अगर मैं इस तरफ वीडियो लैपटॉप रखूंगी तो इस साइड से मेरा व्यू आएगा, राइट। एंड मैं अपना वीडियो यहाँ पे पेस्ट करके देन ये रिकॉर्डिंग ऑप्शन स्टार्ट करूंगी। ये सेम चीज आप लाइव क्लास में भी कर सकते हैं। लाइव क्लास में भी आप पढ़ा रहे हैं, वीडियो आपका गो लाइव ऑप्शन से आ रहा है, यहाँ पे आप रिकॉर्डिंग ऑप्शन ऑन कर दीजिए। नेक्स्ट यहाँ पे आप रिकॉर्डिंग का नाम दे दीजिए। सो मैं ये बोलना चाहूंगा, लेट्स सी आपके क्लासेस में आपके खुद के कैमरा को लेके वीडियो भी आपके आ जाएंगे टीचर के। सो हमारा बोर्ड से जो भी एनोटेट करेंगे लिखोगे, ये स्क्रीन भी रिकॉर्ड होगा।
सो अब ये रिकॉर्ड करके किसी को रिकॉर्डिंग सेशन बाद में भी शेयर कर सकता है। अब लेक्चर ही रिकॉर्ड हो गया विद ऑडियो विद वीडियो एंड विद कैनवास के आप जो लिख रहे हो वो पेज के साथ भी रिकॉर्ड हो गया है, सो आप भेज सकते हो उसके बाद। सो ये हमारा सॉफ्टवेयर में मिल रहा है। आईसाइट करके जो फीचर है वो आपको खुद का लैपटॉप का कैमरा यूज कर सके। सर इसमें स्टूडेंट्स का अटेंडेंस भी मेंटेन होता है ना? या अटेंडेंस भी मेंटेन होता है, हमारा प्लेटफॉर्म में मेंटेन करते हो कि अटेंडेंस भी मेंटेन होता है। अटेंडेंस जो होगी ना सर वो ऑटोमेटिकली रजिस्टर हो जाएगी। मैं अभी दिखाती हूँ आपको वो ऑप्शन भी। अभी ये मैंने वीडियो रिकॉर्ड करके सेव कर दिया है। अभी ये ऑन करके इनको चलाना है कि कैसा व्यू आता है, तो वो भी देख सकते हैं। राइट, तो ये मेरा वीडियो अभी स्टार्ट हो गया है। मैं यहाँ पे अपना ऑडियो भी चीज बढ़ा देती हूँ। तो अब ये पे वीडियो भी रिकॉर्ड, वीडियो के साथ साथ आपका ऑडियो भी रिकॉर्ड हो रहा है। तो जो भी चीज मैंने लिखा वो देखो बिल्कुल एप्रोप्रिएट मैनर में आपको वीडियो में भी आ रहा है। राइट, नेक्स्ट यहाँ पे आप ग्रुप वाइज अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं या और अपने जो आपका बैकग्राउंड है उसको भी आप चेंज कर सकते हैं। इसमें व्हाइट पेन ले लो, अब दिखेगा ग्रीन के ऊपर व्हाइट पेन, ब्लैक के ऊपर व्हाइट पेन, सभी कर सकते हैं। ग्रीन बोर्ड है, इसको थोड़ा रेड पेन से भी अगर लिख रहे हो तो नहीं, रेड नहीं दिखेगा, व्हाइट ले लो, व्हाइट ले लो। हाँ, राइट। और ब्लैक बोर्ड बैकग्राउंड करके भी व्हाइट ले सकते हो नॉर्मल ब्लैक बोर्ड में। ब्लैक बोर्ड भी आप यूज कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या कलर बैकग्राउंड में यूज करना चाहते हैं। अगर आपको बैकग्राउंड में इमेज सेट करना चाहते हैं, जैसे आप इंडिया का मैप दिखा रहे हैं, तो इंडिया का मैप अगर आप व्हाइट बोर्ड में दिखाएंगे इतना छोटा सा दिखेगा, राइट। तो आप क्या कर सकते हो, उसको बैकग्राउंड में ही सेट करके और उसमें सारी चीजें पॉइंट बाय पॉइंट एक्सप्लेन कर सकते हैं, राइट। तो ये व्हाइट बोर्डिंग का फीचर्स है। टेक्स्ट रिकॉग्निशन भी है, सभी आप लोग प्रिंसिपल सर अभी आते हैं तो ये शो कर देते हैं। सर वो मैथ इक्वेशन का जो ऑटो करेक्ट ऑप्शन था, ये भी बताओ मैम को बोलने के लिए। ऑटो करेक्ट ऑप्शन, वो मैथ इक्वेशन लिखने के बाद राइट सर, मैं एक्सप्लेन कर यहाँ पे देख लो, मैंने फ्री हैंड राइटिंग से जो भी चीज लिखा वर्ड वो ऑटोमेटिकली कंप्यूटर जनरेटेड फॉर्म में आ गया। आप स्क्रीन का इसका वर्ड का साइज भी इंक्रीज करके कहीं भी पेस्ट कर सकते हो व्हाइट बोर्ड में, राइट। तो फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मैं फिजिक्स के बारे में पढ़ा रही हूँ तो मैंने फिजिक्स लिखा और इतना ये कन्वर्ट करेगा। अभी मुझे इस टॉपिक के बारे में या सब्जेक्ट के बारे में कुछ भी पढ़ाना है, मैं इमीडिएटली इसको यहाँ पे पेस्ट करके और जो भी हमारा लेसन है उसको एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। देन मैथ रिकॉग्निशन में आप कोई फ्री है, आप कोई भी न्यूमेरिकल या कोई फॉर्मूला अगर आप यहाँ पे लिख रहे हैं उसको ये इमीडिएटली कन्वर्ट कर देगा और आंसर आपका जो भी आ रहा होगा, मतलब इसमें आपका जो टीचर्स का कैलकुलेशन टाइम है वो रिड्यूस हो जाएगा। जैसे क्लास में ही सपोज आपने sin 60 cos 60 या tan जो भी कोई भी फॉर्मूला लिखा है उसका ये आपको सब सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करनी पड़ती है, देन आपको टाइम देना पड़ता है उसको कैलकुलेट करने में। तो यहाँ पे आपको कैलकुलेशन टाइम सेव हो जाएगा, उसको रख सकते हैं। कोई और फॉर्मूला लिखना है, जैसे आपने √256 प्लस 10 प्लस 385 या 375 का जो भी लिखा वो ऑटोमेटिकली आप ये कन्वर्ट कर यहाँ पे डिटेक्ट कर रहा है, बिल्कुल आप ये डिटेक्ट कर रहा है एंड देन उसका जो भी आंसर आएगा वो आपको यहाँ पे मिल गया, राइट। अब इसके ऊपर अगर आपको कुछ एक्सप्लेन करना है आप वो भी कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट फीचर आप जो पूछ रहे थे अटेंडेंस वाला, यहाँ पे आप देख रहे हो अभी स्टूडेंट्स लिखा हुआ, यहाँ पे अभी सिर्फ एक स्टूडेंट है। अगर आप अपने साइड से 10 स्टूडेंट्स को ज्वाइन किया हो तो उनके यहाँ पे नेम दिखाई देंगे। जो स्टूडेंट्स एब्सेंट हैं उनके नाम पे जस्ट यहाँ पे टेक अटेंडेंस पे जाना है और बाय डिफॉल्ट में सारे प्रेजेंट आएंगे, जो एब्सेंट है उसके नाम पे एब्सेंट कर देना है और कंफर्म यहाँ पे ये कंफर्म। ये तो हो गया मैनुअल वाला, जहाँ पे आप फिजिकल क्लास में पढ़ा रहे हैं तो फिजिकल क्लास का अटेंडेंस तो आप यहाँ से ले सकते हैं, लेकिन जो लाइव क्लास में है उनका अटेंडेंस कैसे लेंगे। सपोज उन्होंने वीडियो ऑन कर दिया लेकिन वो पढ़ नहीं रहे हैं, वीडियो ऑन करके लेक्चर ऑन करके चले गए, अभी तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो क्लास में बैठे थे या नहीं बैठे थे। तो उसके लिए भी हमारे पास सोल्यूशन है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमने लाइव, जैसे यहाँ पे मैं लाइव क्लास स्टार्ट करती हूँ अभी,
यहाँ पे राइट, ये हमारा क्लास चल रहा है। यहाँ पे मैं गो लाइव किया, ऑडियो वीडियो जो भी चूज करना आप कर सकते हैं। अभी यहाँ स्टूडेंट ने भी सेम लाइव क्लास में ज्वाइन किया। सपोज यहाँ पे ही मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको स्क्रीन में। उदय जी, ये रिपीट तो नहीं हो रहा है ना? आई मीन पहले भी हमने एक्सप्लेन किया था, सो दिस इज ओके, और कुछ आप पूछना चाहते हो? यस 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 यस, बिकॉज ऐसे होना चाहिए कि हाँ ये क्या कर रहे ओके हैं सर, देखते हैं। यस, अच्छा चल रहा है ये, सेम सेम व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग। ओके ओके सर, इट्स गोइंग ओके। राइट सर, तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये अब अभी लाइव इस फिजिकल क्लास में तो आपने वहां से अटेंडेंस ले लिया, लेकिन लाइव क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं उनका अटेंडेंस आपको नहीं दिख रहा। सपोज उन्होंने वीडियो बंद कर दिया और क्लास में भी नहीं है, चले गए, वो छोड़ के नहीं पढ़ रहे हैं, बस लॉगिन किया हुआ है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो लाइव थे भी या नहीं थे? तो आप इमीडिएटली क्लास में जाएंगे। आप यहाँ पे भी जो लाइव क्लास आपका चल रहा होगा, वो लाइव पे जा रहे हैं, कंफर्म किया, ये लाइव क्लास चलने लगा। आप यहाँ देख रहे हो नाम ब्लर आ रहा है, मतलब कि ये स्टूडेंट अभी क्लास में एंटर नहीं किया है, मतलब लाइव क्लास में ये नहीं आया है। अभी यहाँ पे लाइव क्लास चल रहा है, स्टूडेंट के साइड में क्लिक करेंगे, लाइव क्लास में आ गया हमारा स्टूडेंट। आई कैन आल्सो कम टू दिस क्लास। हाँ, ये आ गया। अभी ऑटोमेटिकली ये वॉइस डिटेक्ट कर लेगा स्टूडेंट का भी और टीचर का भी। राइट नाउ अभी बंद है, ये कैमरा भी बंद है। अभी यहाँ पे भी ये स्टूडेंट आ रहा है, लाइव दिख रहा है। अभी टीचर के पास पूरा राइट है, अगर आप सपोज मानिए आप एक क्लास में पढ़ा रहे हो और आपने एक स्टूडेंट को बोला कि ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके दिखाओ, तो अभी जो घर से बैठ के बच्चा पढ़ रहा है, जो लाइव पढ़ रहा है, वो उस चीज को कैसे सॉल्व करेगा? तो आपके पास वो राइट है, आप उसको पूरा अथॉरिटी दे सकते हैं वो व्हाइट बोर्ड पे लिखने का। कोलैबोरेशन ऑन किया, ये पेन टूल है, इसको जब तक आप ऑन नहीं करेंगे स्टूडेंट नहीं लिख पाएगा। मैंने ऑन किया। अभी आप यहाँ देखो स्टूडेंट के साइड में भी ये टूल्स आ गए। अभी स्टूडेंट जो भी चीज लिखेगा वो टीचर को दिखेगा, राइट। अगर यहाँ पे मैंने एक पेज और ऐड कर दिया, अभी हमने ये पेन ऑप्शन को बंद कर दिया, मतलब डिस्कनेक्ट कर दिया, स्टूडेंट के पास में टूल्स गायब हो गए, वो वहां पे कुछ भी नहीं लिख सकते हैं, राइट। तो टीचर के पास ये पूरा अथॉरिटी है। नेक्स्ट चीज, अगर आप स्टूडेंट ने यहाँ पे वॉइस ऑन किया हुआ है, राइट, और आपने उनको यहाँ से म्यूट कर दिया, तो स्टूडेंट अपना माइक्रोफोन भी ऑन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आपने म्यूट कर दिया, जैसे मैं जूम का ही एग्जांपल ले लूं, उस पे आप म्यूट करते हैं किसी को और वो अपने साइड से ऑन कर लेता है विदाउट योर परमिशन, राइट। तो अगर आप स्टूडेंट भी बीच में टीचर्स को डिस्टर्ब करने के लिए बहुत आ जाएंगे कि वो डिस्टर्ब कर रहे हैं, माइक ऑन कर दिया और बोल रहे हैं बैठ के, तो टीचर तो डिस्टर्ब हो रहा है, वो अदर बच्चों को नहीं पढ़ा, दुपारी करा उद्या। तो यहाँ पे वो स्टूडेंट का माइक भी हैंडल कर सकते हैं। अभी इसमें एक नेक्स्ट वीक में एक और अपडेट आएगा, जहां पे आप अपने स्टूडेंट का फेस से उनको डिटेक्ट कर सकते हैं, फेस रिकॉग्नाइज करके वो आपको सेंटीमेंट्स देगा कि आपका स्टूडेंट इसमें और एक अपडेट है। अगर क्लास चल रहा है, इसमें एक टीचर के कैनवास में एक वैसा गाड़ी में स्पीडोमीटर जैसा है ना, वैसा दिखेगा। राइट साइड में कितने भी स्टूडेंट है, एक्टिव है तो ग्रीन दिखेगा, अगर नहीं एक्टिव तो रेड दिखेगा। सो ओवरऑल क्लास का अटेंडिवनेस भी टीचर को मिल जाएगा कि जो लाइव क्लासरूम में अपोजिट वाला कितने परसेंटेज अगर अटेंटिव है। अगर एकदम अटेंटिव है कैन कंटिन्यू, अगर रेड में दिख रहा है कि वो दे कैन चेक फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट कौन एक्टिव है नहीं है। सो लाइव क्लास में दिक्कत जनरली आता है, उसको भी हमारे पास टूल है, सो वो ओवरकम कर सकते हैं। या प्लीज प्रीति। नेक्स्ट, अभी आपने पढ़ा लिया, लाइव क्लास भी हो गया, तो फिजिकल क्लास का अटेंडेंस हो गया। लाइव क्लास में ये बच्चा आके पढ़ रहा था, तो इसका अटेंडेंस यहाँ पे ऑटोमेटिकली रजिस्टर हो गया। तो यहाँ देख रहे हो आपकी 1 स्टूडेंट अटेंडेंस, यहाँ पे आपने जैसे ही गो लाइव को एंड किया, मतलब लाइव सेशन आप जैसे ही एंड करेंगे, ये आ जाएगा आपका कितना मिनट का सेशन चला, कितना मिनट का आपने वीडियो कंज्यूम किया, कितना मिनट का ऑडियो कंज्यूम किया, कितने स्टूडेंट्स लाइव में ज्वाइन किए। ऑटोमेटिकली अटेंडेंस हो गया लाइव वालों का, फिजिकल का तो आपने यहाँ पे ले लिया, राइट। तो इस तरह से आपको ऑनलाइन जो पढ़ रहे बच्चे, उनके अटेंडेंस की भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली वो रजिस्टर हो जाएंगे।
और चेक करना है कहाँ पे रजिस्टर होंगे, स्टूडेंट्स में जाएंगे और यहाँ पे उनका नेम दिखाई देगा। राइट सर? अभी टेस्ट वाला में जाइए। हाँ जी, यहाँ पे टेस्ट। मुझे ऐसा लगता है मुरुगन सर कि वो बोर्ड के ऊपर लिया तो अच्छा रहेगा ना, हो सकता नहीं है? नहीं, बोर्ड के ऊपर नहीं, अभी इसमें क्लियर स्क्रीन शेयरिंग में इजीली देगा ना। हाँ हाँ ये हाँ इसमें वो जो दूर में से बोर्ड में लिख रही है, हाँ तो हाँ। इसमें क्या है, सबको तो फुल फ्लो स्क्रीन सब दिखेगा। पार्टिसिपेंट को बताओ कि बाबा ये हम बोर्ड पे भी कर सकते हो, लेकिन हाँ आप बोर्ड देखो, पे मैं कर सकते मैं हैं। मैं मैं वही ब्रीफ कर रहा हूँ। अभी तक क्या हुआ है, हार्डवेयर में बोर्ड में फिजिकल क्लासरूम में भी हम क्लास कंडक्ट कर सकते हैं, क्लास लेसन प्रिपेयर कर सकते हैं। ऑनलाइन में भी हम पढ़ा रहा, ऑनलाइन में भी लाइव लेक्चर हो गया, एक्सप्लेन किया सब कुछ, अटेंडेंस वगैरह हो गया। अभी हो गया टेस्ट पार्ट। अभी प्रीति कंडक्ट करेगी कि टेस्ट क्वेश्चन पेपर जनरेशन। प्रीति या तो आप यहाँ पे अभी जैसे आप देख रहे हो, ये टेस्ट का ऑप्शन आ रहा है टीचर के साइड में। यहाँ पे आप असाइनमेंट भी क्रिएट कर सकते हैं। तो मैथ्स का आपको कुछ बनाना है या बायो का, जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ाते हैं उससे, जो भी आपने टॉपिक पढ़ाया है उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे कोई भी बनाना है क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस, मल्टीपल सिलेक्शन, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी आप ले सकते हैं। ये AI रिलेटेड टूल है जहाँ पे आप अपने स्टूडेंट्स का मतलब ऑटोमेटिकली क्वेश्चंस जनरेट कर सकते हैं। राइट? सो ये जो फीचर है, आई वुड लाइक टू थोड़ा समरी कर सकता हूँ। ये जो फीचर है, जो अवेलेबल टेक्स्ट के हिसाब से टीचर को एकदम इजीली बेस्ड ऑन टेक्स्ट पैराग्राफ का टेक्स्ट है उधर कॉपी कर दिया, सो उस टेक्स्ट के यहाँ से वो ऑटोमेटिकली क्वेश्चन जनरेट करके दे देगा टीचर्स को। प्लीज प्रीति। आपका आवाज नहीं आ रहा मदन, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, नो इश्यूज। तो यहाँ पे बेसिकली आप जैसे सपोज मानिए आप क्वेश्चन पेपर बनाते हैं, राइट? तो कहीं ना कहीं से आप कॉपी डेटा आप उठाते हैं, राइट? मतलब क्वेश्चंस हो गया, उसका आंसर क्या होगा वो भी आप लिखते हैं। यहाँ पे आपको वो सारी चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली आपके लिए क्वेश्चन आ जाएगा, जनरेट हो जाएगा और उसका क्या आंसर रहेगा वो भी आ जाएगा। राइट? तो अगर आप यहाँ पे कुछ चेक करना है, तो सपोज यहाँ पे मैं ओम्स लॉ के बारे में मुझे बताना है अपने स्टूडेंट्स को कि क्या होता है और कितने क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। तो आप यहाँ पे जाइए और आपका जो भी डेटा आपको कॉपी करना है आप वो कॉपी कर सकते हैं। तो मैंने कॉपी कर लिया। आपके पास अगर ई बुक है और आप ई बुक का डेटा कॉपी कर रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। या अगर आप टाइप करना चाहते हैं यहाँ पे पूरा डेटा, वो भी टाइप करके भी रख सकते हैं। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको कॉपी ही करना है सारा डेटा, नहीं, आप टाइप भी कर सकते हैं। राइट? तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस अभी ये जनरेट कर रहा है, तो जितने भी क्वेश्चंस ये जनरेट कर पाएगा वो आ जाएंगे यहाँ पे। राइट? तो यहाँ पे आ गए हमारे सारे क्वेश्चंस। अभी आप इसमें से कौन सा क्वेश्चन आपको अपने पेपर में रखना है, पेपर में ऐड करना है, आप उस पर क्लिक करके उनको पेपर में ऐड कर सकते हैं। राइट? ऐड करने के बाद में आपको जस्ट एक थोड़ा सा काम और करना पड़ेगा, रॉन्ग ऑप्शंस ऐड करने होंगे, क्योंकि ये तो आपको राइट आंसर दे देगा लेकिन ये रॉन्ग ऑप्शंस नहीं देगा। आप रॉन्ग ऑप्शंस ऐड कर दीजिए। कितने मार्क्स का ये क्वेश्चन रहेगा वो ऐड करना पड़ेगा, कि ये 1 मार्क्स का है या 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। इस तरह से आप यहाँ पे पॉइंट वाइज भी दे सकते हैं। राइट? अभी हमने पूरा पेपर बना लिया। नेक्स्ट आप सेटिंग लगा दीजिए कि ये पेपर ऑटोमेटिकली कब तक ड्यू ऑन हो जाना चाहिए। ये मतलब टाइम लिमिट दे सकते हैं, 60 मिनट के लिए पेपर स्टूडेंट्स के लिए विजिबल रहेगा, वो भी लगा सकते हैं। सेट वाइज क्वेश्चंस भी बना सकते हैं, शफल ऑन शफल ऑफ करके, और क्वेश्चन पेपर पे आप शफल कर सकते हैं। देन रूब्रिक्स में आप अपने इंपॉर्टेंट नोटिस दे सकते हैं, आपका क्या है कि ऑल क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट, समथिंग लाइक नेगेटिव मार्क्स आर देयर, सो लाइकवाइज यू कैन ऐड योर गाइडलाइंस। थीम्स चेंज कर दीजिए ऑटोमेटिकली। ये आपने जितने भी स्टूडेंट इस क्लास में ऐड किया होगा वो उनको कर देगा। आपको नेम भी सेलेक्ट करना नहीं है कि इस स्टूडेंट को जाना चाहिए, उसको नहीं जाना चाहिए। यहाँ पे ये सेटिंग्स आपकी सेव हो गई। देन पब्लिश कर दीजिए। जैसे ही आप पब्लिश करेंगे ये स्टूडेंट्स को विजिबल हो जाएगा। नाउ ये पेपर पब्लिश हो गया है। अभी आप ये स्टूडेंट्स के पास में आपको ये नोटिफिकेशन देख रहे हो, आप ये नोटिफिकेशन में भी जाके वो क्लिक करके ऐड ओपन कर सकते हैं, या फिर ये टेस्ट में जाके यहाँ से ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ
स्टार्ट टेस्ट करेंगे, क्वेश्चंस आएगा एज वेल एज उनका क्या आंसर है वो उनको लगाना है, टिक करना है, और यहाँ पे टाइमिंग चलता रहेगा कि टीचर्स को इससे ये पता चल जाएगा कि इस बच्चे ने कितने टाइम में ये क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया है। तो अब यहाँ पे ऑप्शंस में क्लिक कर देंगे एंड देन जस्ट सबमिट इट। तो जैसे ही आप ये सबमिट करेंगे यहाँ पे आपको इमीडिएटली ग्रेडिंग हो जाएगा। तो आप टीचर का कॉपी चेक करने का भी टाइम रिड्यूस हो गया कि उन्होंने सपोज 100 स्टूडेंट्स हैं तो एक बच्चे का कॉपी भी अगर वो 10 मिनट लगाते चेक करने में तो उनका बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होता है, उतने में वो नया चीज पढ़ा सकते हैं। तो उनका टाइम यहाँ पे बच गया, वो यहाँ पे कॉपी भी नहीं चेक करना है। अब स्टूडेंट्स को ये देखना है कि उन्होंने 2 क्वेश्चन जो रॉन्ग किए हैं वो कौन से थे। तो सी सॉल्यूशन में जाके वो यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन रॉन्ग है, कौन सा क्वेश्चन राइट है। सेम चीज यहाँ पे टीचर्स को भी विजिबल होगी कि कितने स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट किया, कौन सा क्वेश्चन उन्होंने राइट लगाया, कौन सा क्वेश्चन उन्होंने रॉन्ग कर दिया, राइट। तो इस तरह से टीचर्स अपने पर्टिकुलर स्टूडेंट के उनके प्रोग्रेस पे देख सकते हैं कि उसको कितना और मेहनत करना चाहिए आगे। तो यहाँ पे उस स्टूडेंट का क्या परसेंटेज है, क्या एक्यूरेसी है, वो सारी चीजें भी यहाँ पे आपको विजिबल रहेंगी। अभी आप सपोज कीजिए इस टीचर ने पढ़ा लिया, पूरा सब कुछ हो गया, राइट। देन अभी ये सारी चीजें आपके एडमिन को भी देखनी है, जैसे प्रिंसिपल है या जो वाइस प्रिंसिपल हैं उनको देखना है कि इस पर्टिकुलर क्लास में क्या प्रोग्रेस हो रहा है, क्या पढ़ाया जा रहा है। वो भी उस क्लास में जाके इमीडिएटली ये इनसाइट एंड एनालिटिक्स में जाके देख सकते हैं स्टूडेंट्स का अटेंडेंस कितना प्रोग्रेसिव था, कितना परफॉर्मेंस था इस क्लास में, कौन सा असाइनमेंट दिया गया है। देन यहाँ पे डेली लॉग्स में भी आप देख सकते हैं अटेंडेंस और असाइनमेंट कौन कौन सा लिया गया है, किस टीचर ने लिया है, कितने स्टूडेंट्स ने उसको अटेम्प्ट किया है। नेक्स्ट रिपोजिटरीज में भी आप ये देख सकते हैं कि कौन से टीचर ने कौन सा लेक्चर प्लान प्रिपेयर किया है, राइट। एंड मीडिया एंड डॉक्यूमेंट्स में भी आप सेम चीज, अगर कुछ अपलोड किया है आपने फाइल वगैरह, वो भी आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। तो एडमिन के पास, जो आपके डायरेक्टर प्रिंसिपल्स हैं, उनके पास पूरा राइट है, पूरा अथॉरिटी है कि वो एक एक क्लास के बारे में देख सकते हैं कि क्या पढ़ाया जा रहा है, राइट सर। तो ये सारे फीचर्स आपको ये डिवाइस के साथ में मिलेंगे, और ये फीचर्स जो मैं आपको लैपटॉप पे दिखा रही हूँ वो आप डिवाइस पे भी कर सकते हैं। मैं लैपटॉप पे इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि वो क्लियर दिखेगा। यस, राइट सर। यस। तो अभी आपको कोई क्वेश्चन है, आप पूछ सकते हो। हा, कुणाचे काही प्रश्न असले तर प्लीज विचारू शकता सर, सगळ्यांना विनंती आहे। काही प्रश्न असतील तर विचारा प्लीज। उदय सर नमस्कार, थोरात सर बोलतोय। हेलो, हा बोला सर, बोला बोला, विचारा, प्रश्न विचारा सर प्लीज। सर जो पठारे सरांनी क्वेश्चन केला होता तो विचारा ना, त्यांना क्लिअर होईल का तो? आपल्याला सांगितलं ना, मग लॅपटॉप समोर ठेवल्यानंतर, स्क्रीनच्या लॅपटॉप समोर ठेवल्यानंतर त्यांचे जे गेस्चर्स आहेत टीचरचे, बॉडी लँग्वेज किंवा काय, तर ते पण रेकॉर्ड होणार आहेत, ते पण विद्यार्थ्यांच्या समोर जाणार आहे। म्हणजे नुसतं व्हाईट बोर्डवर काय लिहित आहेत त्यापेक्षा समोरून जो काही थर्ड पार्टी कॅमेरा लावलेला आहे त्या कॅमेऱ्यामध्ये पण आपल्याला रेकॉर्डिंग सोबत ते पण रेकॉर्डिंग, पिक्चर रेकॉर्डिंग होणार आहे। त्याच्यामुळे यांचा जो प्रश्न होता पठारे सरांचा की बाबा टीचर्स वरती, युनिफॉर्म वरती किंवा त्यांच्या त्या बॉडी लँग्वेज वरती व्यवस्थित कंट्रोल येण्यासाठी ती गरजेचं आहे, तर ते पण त्याच्यात कव्हर होतं सर, नो प्रॉब्लेम। एका सॅटेलाइट मध्ये टीचर्स आपण बघितलेत पहा, मॅडमनी दाखवलं आपल्याला शिकवताना, एका साईडला त्यांनी त्यांना मूव्ह करून ठेवलेलं होतं, बरोबर। तर या पद्धतीने सुद्धा कंट्रोल केला जातो। आणि लाईव्ह क्लास मध्ये बघताना ऍडमिन कडे कंट्रोल आहे, क्लासमध्ये पण ते बघू शकतात काय लाईव्ह चालू आहे। सर अजून कुणाचे काही प्रश्न आहेत का प्लीज? सर ये कंप्लीट कॉम्बिनेशन है हमारा सोल्यूशन, ऑफलाइन क्लासरूम, ऑनलाइन क्लासरूम, आपका क्लासरूम के साथ व्हाइट बोर्डिंग के साथ बहुत सारा फीचर है, कास्टिंग फीचर्स है, शेयरिंग फीचर्स है, रिकॉर्डिंग फीचर्स है, मतलब कंप्लीट सोल्यूशन है। अगर एक्चुअली में आपको करंट सिनेरियो में भी क्या चाहते हो
everything is in our solution. ठीक है, और प्रश्न कुछ आहे? क्वेश्चन? क्वेश्चन्स आहे कुणाचे काही प्लीज? व्हीपी कॉलेज बारामती किंवा मान्य निर्मळ सर, आपले काही प्रश्न असतील तर प्लीज विचारू शकता प्लीज. सो ठीक है, फिर उदय जी हम कंक्लूड करते हैं. सो आई थिंक यस सर, मी सर्वांचे आभार मानतो. आपके टीम के भी बहुत हम शुक्रगुजार हो कि बहुत अच्छी तरह से लेसन दिया हमको, 100% दिया है. थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू जॉइन दिस थैंक यू. मीटिंग. थैंक यू. ओके, थैंक थैंक यू. यू. थैंक यू सर. बहुत अच्छी तरह से आपने एक्सप्लेन किया है. वी आर रियली ऑन बिहाफ ऑफ आवर विद्या प्रतिष्ठान, जस्ट all the team members along with